I'm Momina Mustahsin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe to Rewind with Samina Pirzada. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा की आज की मेहमान मोमिना मुस्तहसन है। आप सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी सिंगिंग स्टार हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस बहुत सारे सवाल करूँगी और सारे सवालों के जवाब ढूंढूंगी। वेलकम मोमिना। मोमिना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for inviting me. You've It's my honor. Mine too. You've sung something that I love. You've Really? sung a song that I love. तेरा वो प्यार। Oh, I'm so glad you said that. मुझे बहुत पसंद है, बहुत। I almost thought कि आप आफरीन कहेंगी. नहीं। But तेरा वो प्यार so much more closer to me. अच्छा। Because that was a time that I actually sang from my heart. And I think you can tell that as well. आफरीन तो फिर था ना, छा जाने का नुस्खा है ना। कहाँ पैदा हुई थी? मैं कोयटा में पैदा हुई थी. It's really random. My family or my parents have nothing to do with कोयटा. मेरे भाई जर्मनी में पैदा हुए थे दोनों। जी, बड़ा वाला भाई, छोटा भाई मुल्तान में पैदा हुआ था. So my father was in the army. तो वो तो फिर ट्रैवल करते हैं ना, उनकी तो पोस्टिंग्स होती हैं। जी, तो कोयटा, when I tell somebody I was born in कोयटा. और हैं कहाँ से आप लोग? ये भी बहुत अच्छा सवाल है. I don't know. My father's side of the family is from Delhi, and then they migrated to Pakistan. They were in Pindi. And then सब पिंडी से हुए ना? Not really, because Mustahsin farms are close to Multan, so they all moved to Multan as well at some point. But then my father was in boarding school, and then he was moving around, and all of my family is in different parts of the world. So इतने जो move around कर रहे थे तुम्हारे अब्बू, तो अम्मी को कहाँ मिले? वो arranged marriage thing actually. Really? Yeah, but they act, even now they act like they met like 2 days ago and they just fell in love. And Wow. they're always on the phone, texting each other. My mom's name is saved as Babe on my dad's phone, which is pretty embarrassing sometimes. Because unka phone aa raha tha Babe, and everyone gets awkward, like, who's this Babe calling you? So he's an army man and she? She's a doctor. She got married when she was in medical school. अच्छा. And then she moved to Germany with my father. Because तो म्यूजिक कहाँ से आया मोमिना? म्यूजिक पता नहीं कहाँ से आया. भाइयों में है शौक? मेरे दोनों भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं. They play the guitar as well. अम्मी गाती हैं? अम्मी बाबा दोनों. हाँ तो फिर They all have a very good voice. हाँ. My older brother is a doctor. My younger brother is he just graduated. He finished his bachelor's in political science. स्कूल कहाँ पढ़ा? न्यूयॉर्क में और पाकिस्तान में. पाकिस्तान में कहाँ? बहुत सारी जगहों पे. लाहौर में, इस्लामाबाद में, और 8 months के लिए कराची में. और स्कूल में क्या करती थी? स्कूल में मैं एक बहुत कंफ्यूज्ड बच्ची होती थी, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है एंड न्यूयॉर्क ऑब्वियसली इज द अमेरिकन सिस्टम. वहाँ पे मुझे सिखाते थे COLOR कलर की स्पेलिंग है, और यहाँ पे आके it was नहीं, गलत, it's COLOUR, you're missing U. तो फिर मैं सीख लेती थी कि U है, मैं भूल जाती हूँ. So then I'd go back and spelling test में I'd say I know this, COLOUR, and it's wrong again, and I'm like, so what is right? Everything is wrong. अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब 2 भाई हों और एक बहन हो, तो बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा inclined towards playing the boy games and उस तरह की चीज़ें होती हैं. जी. क्रिकेट खेलेंगी, दरख्तों पे चढ़ेंगी, साइकिलिंग करेंगी, बहुत मज़ा करेंगी. But then you have to think, what are boy games, right? So what are you? I am a girl who loves all sports, and I used to challenge myself just the way my brothers used to challenge themselves. Because my parents never raised me as ये लड़की है या वो लड़का है. It was always ये हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों को हर स्पोर्ट्स से एक्सपोज होना चाहिए, हर एक्टिविटी करनी चाहिए. जो मेरे भाई करते थे वही मैं भी करती थी. क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग, शो जंपिंग, पोलो, टेनिस, swimming,
though I never learned it. I was always an old dog who couldn't be taught new tricks. So swimming I could never learn. Hiking and all of these things. But yeah, I used to play with all the guys on the street with my brothers because not many girls used to come out. तो पढ़ा क्या कॉलेज में? I'm a biomedical engineer and applied mathematician. तो I had a double major. इस तरफ कैसे आ गई? मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहिए था। अम्मी भी यही कहती हैं, पर मैं अम्मी को ये नेचुरली या फौजी होना चाहिए था। क्योंकि अम्मी भी डॉक्टर हैं एंड माय ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। मैं अम्मी को ये कहती हूँ कि अगर बायोमेडिकल इंजीनियर्स ना हो तो डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर सकते। अगर हम मशीनरी नहीं बनाएंगे तो आप ये जो टेस्ट लिख के देते हैं पेशेंट्स को वो कहाँ से कराएंगे? इतनी सारी अकल कब आई? आई थिंक हर एक के अंदर अकल होती है पर आपको टैप इन करना पड़ता है। और अगर बायोमेडिकल इंजीनियर्स दवाइयाँ ना बनाएं तो आप जो प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? छोटी सी मोमिना क्या सोचती थी? हमेशा से बचपन से आई यूज्ड टू सी माय मदर। हाँ, क्या सोचती थी, क्या ख्वाब देखती थी? मैं अम्मी को देखती थी बचपन से। देखिए मोहब्बत तो हर एक से होती रहती है। माय फादर वुड से talk after you're done eating because I would be eating and talking because I love talking. अच्छा। In places set up camps for women and children. क्योंकि अम्मी is gifted in a way that she can speak multiple languages. She's a Farsiwan, so she's Persian speaking, but she also knows Pashto because her grandmother was an MNA in Peshawar. So she would spend a lot of time, every summer probably, in Peshawar. So she picked up Pashto as well. So she knew the Pashto, I think Afghani dialect and the other, there are two dialects apparently. तो इसलिए जब वो कैंप सेटअप करती थी या इस्लामाबाद के एरियाज़ में या कोयटा के एरियाज़ में, शी वॉज बेटर एबल टू कम्युनिकेट विद रेफ्यूजीज स्पेशली क्योंकि उनका लैंग्वेज बैरियर बहुत होता था। तो आप जब एंड आई यूज्ड टू अकम्पनी हर एंड सी के लोग कितनी दिल खोल के दुआएं दे रहे हैं कि आप उनकी बात, उनकी तकलीफ़ समझ सक रहे हैं और उनकी मदद कर सक रहे हैं, चाहे वो एक पैरासीटामॉल की दवाई क्यों ना प्रिस्क्राइब कर रहे हो। उनकी तो तकलीफ़ है ना जो किसी को बता नहीं सक रहे और वो वहाँ बता रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेटर। तो वो आती थी औरतें वापस बिकॉज दे डिडंट हैव मनी। तो वो या शहद का जार लेके आ रही हैं या कुछ घर से पका के ला रही हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी तकलीफ़ से हमें हेल्प किया। तो दैट रियली इंस्पायर्ड मी टू सी दैट हेल्पिंग mankind is the biggest service you can do and it's more rewarding. And how old were you then? I was very little, I was very young. बचपन से I'd go with her. एक sensitive soul बन गया। हमेशा से because that's the values my parents instilled in all of us, compassion and respect for humanity, चाहे वो financially जिस मर्जी तबके से belong करते हो, professionally जिस मर्जी तबके से हो, you have to respect others to earn respect for yourself. खाने की मेज़ पर क्या बातें होती थी? खाने की मेज़ पे तो मैं बहुत खाती हूँ पहले और सबसे प्रॉब्लम ये होता था कि my father would say talk after you're done eating because I would be eating and talking because I love talking. अच्छा। तो इसलिए आधे टाइम तो मुझे कहते थे प्लीज और किस किस्म की गुफ्तगू होती थी? About work, about the day. हमारा my house always had a rule. My father used to be very busy, my mother would be busy, all of us would be busy as well. पर हम लोग रात का खाना हमेशा साथ खाते थे। रात का खाना खाते हुए my father would ask कि दिन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, क्या सीखा. My mother would ask the same and Baba would share what happened in his day and Ammi. And then they'd always ask, what did you learn today? What was the conclusion of today? Because this is how you live your life, right? कि एक दिन ख़त्म हो गया, it's just gonna be yesterday, tomorrow, right? तो आपने उस दिन से क्या सीखा and what are you? Because every day should be something that adds to you, and every day you grow and you grow. तो उस दिन आपने क्या growth की? It could be anything. So that would be a dinner time conversation, and about how you could give back to society. And make a difference, because everyone lives and everyone dies. That's part of life. You know, you can't deny the fact that you and I and everyone is going to pass away. आपको कैसे पता चला कि मैं ये
आगे ले जा सकती हूँ, मैं इसको गाना प्रोफेशनली भी गा सकती हूँ? Are you a professional singer yet? या नहीं? I only sang at Coke Studio last year and then Coke Studio this year. And I also did Who discovered you? So I actually wrote and composed a song when I was in college with a friend of mine over Skype who was a producer. And then another friend came on board who was also a musician. And somehow the song got released. I was not in the video because I never wanted to be in the limelight. मेरे लिए हमेशा मेरी education एक priority थी because that's very important. But that's a tough field you chose. Oh, very tough field. इसलिए मुझे वो when people call me a singer, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना it pinches me a little bit. क्यों? Because मैंने इतने साल इतनी मेहनत कॉलेज में एक recognition के लिए की थी, to be recognized as an engineer and a mathematician, primarily an engineer. Music was something I guess I was born with. I love music, but then मैंने मेहनत जिस फील्ड में की है, दिन रात I wouldn't have time to sleep. Having 2 majors in college is not easy. It's very hard. But that's something nobody can take away from you. Also, I just got recognized by my college, the State University of New York, as 40 under 40. 40 most successful graduates were under 40 for the SUNY system. Yeah, because उस major में 10 से 15 लोग choose होते हैं हजारों में से. Because it's a very tough field, tough and competitive. And जिस तरह से I got into the major and जितनी मेहनत मैंने की है वो मुझे ही पता है, जितनी sleepless nights थी, but I enjoyed it. मेरे parents मुझे कहते थे कि why are you doing this to yourself? You could do PhD करोगी? शायद, maybe. I would love to. Aren't you lucky? I'm very lucky. And very blessed, lucky. because ये बहुत very special blessed. है. I like to think that I'm blessed and lucky, but then I also want to give myself this credit that I work very hard for it. Very hard. People think that I am living this perfect life with no issues. I am not. I don't even get to sleep a lot of times because that's how occupied I am. Because if you have a passion, then you need dedication. When Afreen happened, I wasn't expecting it to be so successful. Honestly, I was very nervous knowing that that was the first song that was being put out. क्योंकि उस गाने में मुझे rehearsal भी नहीं मिली थी, and it's all live. And it was with Rahat Fateh Ali Khan, who is a living legend. उन्होंने मुझसे पूछा जब वो मुझसे मिले कि आपने कहाँ से सीखा? That was a compliment. I didn't know what to say to him. I was like, girl. I was like, sir, I haven't learned. तो यहाँ करोगी अपना engineering का काम? यहाँ भी करूँगी, यहाँ भी कर रही हूँ. I have developed a solar panel powered vaccine transport cooler, जो कि मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के लैब में डेवलप करना चाह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में रह गया जहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत पोलियो है. हमें eradicate करना है. हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें वैक्सीन्स के लिए बहुत मुश्किल है. वेदर भी और the heat. उस हीट के अंदर आप किस तरह जी, बिकॉज पोलियो की जो वैक्सीन है उसको एक सर्टन टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है, और हमारे यहाँ बिजली की भी कमी है रूरल एरियाज़ में. हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम और आप और जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, हम पाकिस्तान को डिफ़ाइन नहीं करते हैं. हम 4-5 शहर हैं, पर जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान का वो रूरल एरियाज़ में, वो गाँव में है. हमें उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए. घर में इंटीरियर कौन करता है? कौन लाता है फर्नीचर? कौन लाता है? अम्मी पापा दोनों. अच्छा. पापा की भी चॉइस. इंटरेस्ट है घर बहुत ज़्यादा, घरदारी का बहुत ज़्यादा. अच्छा. मुझे बहुत अच्छा, बस आई थिंक कि आपकी जो अपनी एनर्जीज होती हैं वो आपकी सराउंडिंग से इन सिंक होनी चाहिए, तो तभी वो रेजोनेट कर सकती हैं. जब आप अपने एनवायरनमेंट से ही कंफर्टेबल ना हो और आप जैसा एनवायरनमेंट ना हो तो यू कैंट ग्रो. रंग कौन सा ब्लू के अलावा? मुझे येलो बहुत पसंद है. घर के इंटीरियर में येलो है, पर मेरा कमरा पिंक है. आई डोंट बिलीव दिस. ये कैसे हुआ?
मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ, पर मुझे बचपन में पिंक कभी पसंद नहीं था। और बड़े होकर डू यू नो दैट मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था पिंक एज अ Because I always thought कि और ये पिंक मेरी जिंदगी में बड़ा रिसेंटली आया, आई स्टार्टेड वेयरिंग पिंक। really because I always thought कि पिंक ना लड़कियों पे स्लैप ऑन करते हैं, हाँ। लड़की तो पिंक, तो इसलिए मुझे ना डिफाइंस थी ना। हाँ आई वाज लाइक नहीं मैं क्यों नॉर्म के अंदर फिट इन मोहब्बत करने कब की हुई? कोशिश करूं। मोहब्बत कब हुई? पैदा होते साथ ही किससे? अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से। और उसके बाद? उसके बाद देखिए मोहब्बत तो हर एक से होती रहती है। हर एक से तो नहीं होती है बिल्कुल। ये तो बहुत प्यारा जज्बा है। आई थिंक मोहब्बत आपके अंदर होती है, मोहब्बत दूसरे से डिफाइन नहीं होती है। आर यू रोमांटिक? I don't know. मुझे तो बहुत प्रैक्टिकल लग रही हो। आई एम प्रैक्टिकल। वेरी फोकस्ड, वेरी प्रैक्टिकल। पेंट किया है कभी? किया है। हाँ, क्या बनाती है? इतनी वो एक सीनरी थी जिसके अंदर एक घर था और पीछे पहाड़ थे। अच्छा, आपने भी किया है वो? सारे बच्चे करते आगे एक लेक थी और ऊपर चिड़ियाँ थी और एक सूरज निकल रहा था पीछे से और एक कैंप भी था। बिल्कुल। उससे आगे नहीं गई। शायरी Not की? really. I do write. क्या लिखती हो? अंग्रेजी में? उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी। I could have had a breakdown emotionally, but I didn't. ठीक है, heartbreaks, whatever, but the Lord has given you, Allah has given you this world to enjoy. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा है जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और पीछे जो चीज़ें हुई होती हैं उनसे सीखना चाहिए। And we should just keep growing. Because आप जिंदा किसी मकसद के लिए हो, आपको अपना मकसद ढूंढना चाहिए। हम सब लोग गम लेके बैठ सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए। ये बताओ, मौत को क्या समझती हो? क्या चीज़ है मौत is part of life. I just lost my grandmother अच्छा, 2 months ago. She was Were you very close close to to me. Very close to me. She was my best friend. मैं उनसे वो सारी बातें करती थी जो मैं और किसी से नहीं कर सकती थी। एंड नानी अम्मा की डेथ भी बहुत बहुत सडनली हुई। शी वॉज परफेक्टली फाइन, को कुछ नहीं था। एंड शी एक्चुअली वेंट टू द हॉस्पिटल herself because she wasn't feeling well. And she was all dressed up, makeup, matching jewelry, fancy clothes. And ये कहाँ हुआ? मुल्तान में। मुल्तान में। She was administered the wrong drug and she started bleeding internally. She suddenly went into coma and I was in New York and I found out and I went back right away. मैं वहीं से airport चली गई थी and I got whatever flight I got. Went to Pakistan, I was there and she passed away. I could have had a breakdown emotionally, but I didn't. Because I knew that अब वो चाहे दुनिया में ना हो फिजिकली, उनकी रूह तो होगी ना, मैं अब भी उनसे बात कर सकती होंगी क्योंकि हम सब ने एक दिन दुनिया से जाना है। हम सब एक दिन मरेंगे because वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Every soul has to pass on. Yeah, we're all standing in the queue. We are. So आपकी जो ज़िंदगी है उसकी सक्सेस या फेलियर ऐसे डिफ़ाइन होता है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ें तो आपको लोग किन लफ्ज़ों में याद करें, वो होती है सक्सेस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नानी अम्मा, anybody who ever knew her as this person who was always satisfied and happy and always trying to help others and always being a source of positivity. कौन सी उनकी बात है जो तुमने मुट्ठी में बंद करके रखी हुई है? वो चाहे जो मर्जी कोई कर दे ना, वो हमेशा कहती थी खैर है बेटा, इंसान तो अच्छा ही होगा ना। कहती थी नानी माँ, पर नहीं, ऐसे कैसे अच्छा इंसान हो सकता है। she'd be like खैर है बेटा, आपको नहीं पता, अंदर से तो अच्छे होंगे ना, ऊपर से चलो कुछ बुरा दिन होगा। तो मुझे ये बात शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी कि आप भी कहे नहीं वो बुरा इंसान है, ये क्या बात हुई।
क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनकी दुनिया ब्लैक एंड वाइट में होती है। वैलिडेशन चाहिए। हाँ, वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं ना, फ्रेम होते हैं उनके अंदर, गुड फ्रेम बैड फ्रेम, पर जो जिन्होंने ज़िंदगी जी होती है ना उनके अंदर ये और उनको quality कहे होती है। नानी माँ हाँ। मेरे साथ जाती हुई है, नहीं बेटा जाती नहीं हुई है। आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो कि आपके पास ये है, तो जाती तो नहीं हुई, आपको खुदा ने इतना कुछ दिया है। हाँ नानी माँ दिया है, पर उन्हें कौन सा ये गाना तो पसंद? उनको कौन सा गाना पसंद था? उनको सारे गाने पसंद थे। Which one did you sing for her? I used to sing for her all the time. क्या गाती? पुराने गाने। कौन से? क्या वो गाना था? वो क्या गाती थी? नानी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। वो और मैं ना मिलके बहुत पुरानी मूवीज देखते थे। अच्छा। तो वो हमेशा मुझे कहती थी मुझे कोई पुरानी मूवी देखनी है, तो मैं 1990s 80s की मूवीज कहती ये तो लेटेस्ट है, पुरानी दिखाओ। She wanted to see black and लाइक white. नानी माँ ये इतनी पुरानी मूवी है, मेरे पैदा होने से पहले की है। कहती नहीं मेरे बचपन की या मेरे पैदा होने से पहले की पुरानी देखनी है। तो एक हमने बहुत पॉइंटलेस मूवी देखी थी जिसमें पता नहीं कौन वो होते जो आंखें अपनी पता नहीं क्या कर लेते, कोई इंडियन मूवी थी। अच्छा। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। कोई मूवी थी जो कि पूरे टाइम देखते हैं वैसे कि हम क्या मूवी देख रहे हैं। कहती नहीं तेरी सूरत मेरी आंखें टाइप। नहीं वो जिसके अंदर वो गाना था बचपन के दिन भुला ना देना। अच्छा हाँ, दीदार। I दिलीप was कुमार, नरगिस। आई वाज लाइक नानी अम्मा ये इसने क्या किया है? एंड आई थिंक अशोक कुमार। हाँ, लड़की ने नहीं पहचाना तो अपनी आंखें क्यों, मतलब हाँ। और इतनी लड़की है दुनिया में। फिर जवाब क्या दिया? मतलब ये किस तरह का आप मैसेज दे रहे हैं कि बस उसने बचपन के दिन भुलाना देना। तो 4 साल की लड़की थी, अगर उसको वो लड़का याद नहीं है, मुझे तो अपने 8 साल की उम्र के दोस्त इतने याद नहीं होंगे। हाँ। आप अचानक कहीं से फिर से आ जाओ और एक्सपेक्ट करो कि उसको पता भी हो मैं कौन हूँ और उसको बताओ भी ना मैं कौन हूँ, और जब वो पहचाने ना तो फिर आके अपनी आंखें खराब करके चले जाओ। फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, हंस रही थी, कहती नहीं बस है गाना अच्छा है। ये दुनिया और जो नीमतें हैं वो आपके लिए बनाई हैं ताकि आप इस दुनिया का you should live a happy life, that you make use of all of those neemtein, because that's what the Quran says as well, that you know they've made grains grow out of nothing. God has given you so much, then make use of it and give thanks to the Lord. तो ठीक है, आपका दिल टूट गया, लड़की कोई 4 साल की उम्र वाली लड़की को 20 साल की उम्र में याद नहीं था कि हाँ मैं मुझसे मिली थी, बचपन में खेला था। ठीक है, हार्ट ब्रेक्स whatever, but the Lord has given you, Allah has given you this world to enjoy. Give Him thanks, pray to Him, but have a good life. Laugh, learn, grow, live, be happy, and just die then. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना पीरज़ादा। आप मुझे देखेंगे रिवाइन विद समीना पीरज़ादा में, सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी। और मोहब्बत है क्या शय ये अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने। I think love is मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा